اس کلام کے لیے ہم سب میں بانٹے جو خدا نے سے دیا ہوا ہے۔ خدائے سلوس کے محب نام میں اب تمام کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 50ویں آیت سے لے کر 54 آیت تک میں تلاوت کروں گا۔ مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پس صوبیدار جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند برکت بخشے۔ میرے عزیزو، جیسا میں نے کلام مقدس میں سے پڑھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یقیناً ہم بڑے دکھ کی حالت میں، بڑے کرب کی حالت میں کل کا جو دن تھا وہ ہم نے گزارا، اور خداوند یسوع المسیح اذیتیں تکلیفیں لیتا ہوا اپنی زبان مبارک سے انہوں نے 7 صلیبی کلمات جو ہے وہ ادا کیے۔ اور میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے، اور جیسا میں نے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ہر سال جو ہے وہ روزے آتے ہیں، گڈ فرائیڈے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد صبح ہم نے خداوند یسوع المسیح کے زندہ ہونے کا شادیانہ بجانا۔ تو میں یہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جو ہے وہ اندھیرا، پوری دنیا پر جو ہے وہ اندھیرا چھا گیا، اور یہ چوتھا غالباً کلمہ تھا جب خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان کا بلیدان دینا تھا تو بنی نوع انسان کے گناہ جو تھے وہ ان کے سر تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ایک بڑا اندوناک واقعہ تھا، کوئی ایسی، کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ میں اور باپ ایک ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ تو خداوند یسوع المسیح باپ اور بیٹا جو ہے وہ ایک ہی، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کی جدائی ہوگی، اور وہ جدائی کا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان جو گناہ کے چنگل میں ہیں، بنی نوع انسان جو ابلیس کے چنگل میں ہیں، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کی ذات مبارک پر آ گیا۔ اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے، خداوند یسوع المسیح نے جان دی ہے، تو کیا ہوا ہے؟ بڑا بونچال آیا ہے، اور ہیکل کا پردہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پردہ تھا ہیکل میں لگا ہوا، یہ پاک ترین مقام اور پاک مقام کے درمیان تھا۔ ایسے لوگ جو خدا کی خدمت کرتے تھے، سردار کہن لوگ تھے، وہ پاک ترین مقام میں جاتے تھے، اور جو عام لوگ ہوتے تھے وہ پاک مقام میں جو ہے وہ ٹھہرتے۔ سال میں جب قربانی ہوتی تو سردار کہن جو ہے وہ جب جاتا پاک ترین مقام میں تو اس کے گرد جو ہے وہ گھنٹیاں باندھی جاتی، اگر اس کی زندگی میں گناہ ہوتا تو وہ وہیں پہ جو ہے وہ مر جاتا۔ یہ اتنا پاک ترین، لیکن میرے مسیحا نے جب اپنی جان کا بلیدان دیا تو لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ یہ پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، اور وہ جو ایک ڈویژن تھی لوگوں کے درمیان کہ جو پاک لوگ تھے وہ الگ تھے، دوسرے لوگ، یہ ساری ڈویژن میرے خداوند نے جو ہے وہ ختم کر دی۔ اب جو لوگ بھی خداوند میں چلتے ہیں، خداوند میں مسرور رہتے ہیں، خداوند انہیں بلس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بڑے بڑے معجزات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔
अब वो डिवीज़न नहीं रही। और ये एक बड़ा वाक़या था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मसीहा ने जब अपनी जान का बलिदान दिया है तो सबसे पहली बात यह है कि वो फ़र्क भी जो एक पाक तरीन मकाम और पाक मकाम में था वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद आप देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि चट्टानें जो हैं वो तिड़क गई हैं और कब्रें जो हैं वो फट गईं, और उन कब्रों में से जो मुक़द्दसों की रूहें हैं वो ज़िंदा हो गईं, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो उन्हें देखा। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये पूरी बनी नौ इंसान के लिए पूरी कायनात में एक अजीब वाक़या रोनमा हुआ। चूँकि जब आप देखते हैं कि आसमान पर जो है वो लड़ाई हुई है, अबलीस के करिंदों की, अबलीस के लोगों की और खुदा के लोगों की जंग है, तो आसमान पे भी पहली लड़ाई यही हुई कि कुछ फरिश्तेगान जो थे वो खुदाम की तरफ थे और कुछ लूसीफर फरिश्ते की अबलीस की तरफ थे। और आसमान पर जब लड़ाई हुई तो फिर शैतान को मगलूब किया गया, उसकी सारी फ़ौज को मगलूब किया गया और उस सारी फ़ौज को नीचे गिरा दिया गया जो अब काम करती हैं। और ये बड़ी जंग है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अबलीस के, जब बागे अदन में अबलीस ने अपना काम किया, चूँकि उससे पहले आदम जो था वो खुदा की शबीह पे था, लेकिन जब वहाँ पे उसने, क्योंकि खुदावंद ने उसे कहा कि इस फल में से तूने नहीं खाना, बाकी सारे फलों में से तुम खा सकती है, चूँकि वो नेक व बद की पहचान का दरख्त था। अब जब वहाँ से इंसान ने नाफरमानी की तो उसे निकाल दिया गया। बदी और नेकी दोनों का इम्तजाज अब इंसान में है। ऐसे लोग जो खुदाम के साथ चलते हैं, खुदाम के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, तो वो फरिश्तों से भी अफजल होते हैं। ऐसे लोग जो अबलीस के साथ रब्ता करते हैं, ऐसे लोग जो गुनाह की दलदल में हैं, वो दरिंदों से भी बदतर जो है वो होते चले जाते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मसीहा ने इस दुनिया में आकर अपनी लाजवाल कुर्बानी के वसीला से जो है ये साबित कर दिया, हमें एक रास्ता दिखाया है, हमें एक डिवीज़न दी है। अगर हम खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, ज़मीनी खिदमत, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी ये दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें ऐसे तो करना ही पड़ता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाही के वारिस हों तो आपको खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। और ये जो पीरियड है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो ये अब उनका जो वक्त है वो आलमे रवा में जो है वो चले गए और रूहों में जो है वो मनादी थी। और ये भी आप इस तरह न समझे कि ये बिल्कुल जो है, ये भी खुदावंद अपने फ़र्ज़ को, जो ऐसी रूहें जो थी जो आलमे रवा में चली गई, उनमें मुनादी की, उनको जगाया, उनको बताया। और अभी सुबह जब होनी है तो क्या वो जैसे औरतें ख़वातीन को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले वो जो है वो कब्र पर गई और खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हो गए। तो मैं ये ख़ास तौर पे आप लोगों के गोशगुजार बात करना चाहता हूँ कि ये जो ईस्टर का त्यौहार है, ये जो हमने सुबह सुबह जुलूस में शिरकत करनी है, होशना के नारे लगाने हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कब्रों से ज़िंदा हो गए, ये वाक़या एक मौली वाक़या नहीं है। आप बाइबल में पढ़ते हैं, आप उसके मुताबिक ठीक है एक रूटीन में ज़िंदगी जो है वो बसर हो रही है। ये वाक़या पूरी बनी नौ इंसान के लिए, ये ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ आपके लिए, सारी कौमों के लिए, पूरी बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ा अजीब वाक़या था कि मेरे मसीहा ने अपनी जान की कुर्बानी दी। जैसे बने की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी दी और इंसान को गुनाह की दलदल से, अबलीस के चुंगल से जो है वो आज़ाद करवाया है। अगर अब भी खुदावंद के जान का बलिदान देने के बाद भी हमारी ज़िंदगी गुनाह में पकड़ी हुई है, अगर हमारी ज़िंदगी अबलीस के चुंगल में फंसी हुई है, हम मायूसियों का शिकार हैं, हम बीमारियों का शिकार हैं, हम कमज़ोरियों का जो है वो शिकार हैं, तो फिर ये हमारा अपना फ़ैसला है।
अगर आप उस लाजवाल कुर्बानी को, ख़ास तौर पे मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि इस ईस्टर के त्यौहार पर उस लाजवाल कुर्बानी को जो है वो ना सिर्फ एक सरसरी तौर पर आप याद रखें, ना सिर्फ सरसरी तौर पर आपने नए नए जूते ख़रीदे हैं, आप जो है वो नए नए सूट सलवा रहे हैं तो आप जो है वो शरीक हो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उस लाजवाल कुर्बानी को जो है वो अपने दिल में लें, अपनी ज़िंदगी में लें, अपनी सोचों में लें, अपने जज्बात व एहसासात में लें, और फिर देखिएगा कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जो है वो क्या इनकलाब बर्पा करेगा। खुदावंद आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में जो है वो क्या इनकलाब बर्पा करेगा। फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो फ़तहमंद ज़िंदगी होगी। जैसे मेरे खुदावंद ने छठे कलमे में जो है वो जो फ़तह मंदी का कलमा था, जिसमें खुदावन ने सारे कामों को सर अंजाम देकर, सारी पेशन गोइयों को पूरा करके, और जो उनका इस दुनिया में आने का मकसद था उसको, उस मिशन को पूरा करते हुए अपने बाप की जो हुक्म है उसकी बजा आवरी करते हुए कहा कि तमाम हुआ। सारी बातों को, सारे अहकामात की बजावरी करते हुए एक फ़तहमंद नारा जो है वो लगाया कि तमाम हुआ। और इसी तरह अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो फ़तहमंद ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी जो अब क्या है, हम जो है वो अबलीस से घबराते हैं, मायूसियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से, ये बीमारी, अब हम क्या करें, घर के हालात ठीक नहीं, अब हम भाई मेरे, आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उस यीशु के जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, उस यीशु के जो मायूसियों से, बीमारियों से आज़ाद करता है। ज़मीनी खिदमत देखिए खुदावंद की, मुर्दे जो है वो ज़िंदा हुए हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो क्यों कमज़ोर ज़िंदगी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ईस्टर के त्यौहार पर आप मजबूत अपने आप को बनाइए, अपनी ज़िंदगी को फ़तहमंद ज़िंदगी बनाइए। फ़तहमंद ज़िंदगी तभी बनेगी जब आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और उसके मुताबिक अपने कौलो फेल को निभाएंगे। फिर देखिएगा कि रोज़ बरोज़ आपकी ज़िंदगी कैसी फातहाना ज़िंदगी होगी, कैसी फ़तहमंद ज़िंदगी का इर्तिकाब आपकी ज़िंदगी में होगा, और आप जो चाहेंगे खुदावंद आपके लिए करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।